سائنس اینڈ ڈیٹا گیدرنگ. تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں سے آپ کے لانگ کویشچن بھی آنے ہیں، MCQs بھی آئیں گے، شارٹ کویشچن بھی آئیں گے. یہ چیپٹر نمبر 5 انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر نیٹورکس اور چیپٹر نمبر 7 ڈیٹا سائنس اینڈ ڈیٹا گیدرنگ، یہ آپ کا ویری امپورٹنٹ چیپٹر ہے. یہ میں نے آپ کو جو صرف 2 چیپٹر کر لیں اور کمپیوٹر سائنس میں جو اچھے نمبر لیں، اس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں چیپٹر نمبر 7. پیج نمبر اس کا 110. تو 110 پیج نمبر پر ہم جاتے ہیں. ابھی یہ کیا ہمارے پاس چیپٹر نمبر 7، اس کی ہم نے ایکسرسائز کو کیا کرنا ہے، سولو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے. بورڈ پیپر پیٹرن کے مطابق میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز سولو کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی ود عدنان یوٹیوب چینل. جیسے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے اسٹڈی ود عدنان تو پہلے نمبر پر آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ نے اس پر کلک کرنا اور اس کو آپ نے اوپن کر لینا. جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی. یہاں پر آپ کے تمام لیکچر اپلوڈ ہے، جیسے کہ کیمسٹری ٹیک، ICT، اور یہ سب کے لیے ویڈیو امپورٹنٹ ہے. ہر کلاس کے لیے انگلش کے لیٹر میں اسٹوڈنٹس غلطیاں کرتے کہ سوچتے کہ ہم نے تو بہت لکھ کر آ گئے انگلش پیپر میں، لیکن اس میں بہت کم نمبر ہوتے ہیں. انگلش کا پورا لیٹر غلط ہوتا ہے صرف کچھ غلطیوں کی وجہ سے. تو یہ ویڈیو سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، کھسانے کی طرح اس کو آپ نے لازمی سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، باقی بھی یہ جو ہیلتھ سائنس باقی سب کچھ یہاں پر اپلوڈ ہے. وہ تمام لیکچر آپ کو یہ دیکھیں نیچے ہیں. ٹھیک ہے، تو سبسکرائب لازمی سے کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو اس کی چلتے ہیں ایکسرسائز کا سولو پر. پیج نمبر اس کا کیا ہے، بس یہ ختم ہو گیا، کچھ پیجز کا تھا یہ چیپٹر. ہاں، اب یہ ایکسرسائز ہمارے پاس سٹارٹ ہو گئی. سب سے پہلے جو ہمارے پاس کویشچن ہے ایکسرسائز کے ملٹیپل چوائس کویشچن کہ وٹ از ڈیٹا، ڈیٹا کیا ہے، وٹ از ڈیٹا، ڈیٹا کیا ہے. تو اس کا جو سلوشن ہے ہم کریں گے اپنی کی بک اسٹڈی ود عدنان سے. آپ نے آرڈر کی ہوگی، جنہوں نے آرڈر نہیں کی وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹڈی ود عدنان کی 9 کلاس کی بک ہے جس میں آپ کی کمپلیٹ سولوشن آف آل ایکسرسائزز ہیں. ٹھیک ہے، صرف ایکسرسائز سولو ہیں کیونکہ یہ ان میں سے ہی آپ کا پیپر 100% بننا ہے. اور اس کی پرائس بھی اس وجہ سے بہت کم ہے کیونکہ جب اس کی ایکسرسائز صرف ایکسرسائز ہوگی تو اس کے پیجز بھی کم ہوں گے تو وہی کچھ ہوگا جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کچھ اضافی چیز نہیں. اگر یہ سارا کچھ کر لیں گے تو آپ کے فل مارکس آئیں گے اور اس کی پرائز بھی اسپیشل آپ کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہی کچھ جو آپ نے کرنا ہے، صرف ایکسرسائز سولو ہے کیونکہ آپ کا پیپر اسی میں سے بننا ہے. اور اس کی بک پر ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں چیپٹر نمبر 7 کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ فرسٹ پیج ہے کمپیوٹر سائنس ٹیک اینڈ انٹرپرینیورشپ ٹیک کا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ٹیبل آف کنٹینٹس ہے. تو ابھی ہم نے چیپٹر نمبر 7 پر جانا ہے اور اس کے MCQs پر جانا ہے. تو پیج نمبر 62 مطلب کہ 62 پر ابھی ہم موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہ دیکھیں، ڈیٹا سائنس اینڈ ڈیٹا گیدرنگ، یہ آپ کا سارا جو ہے کمپلیٹ سولوشن آف آل ایکسرسائزز آ گیا. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا، سب سے پہلا کیا آنسر وٹ از ڈیٹا. تو یہاں پر بی ہے، بی مطلب کیا ہے، را فیکٹس گیدرڈ اباؤٹ تھنگس. ٹھیک ہے، تو بی یہاں پر بھی ہے لیکن اگر بک پر نشان لگانے تو یہ آپ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد کویشچن نمبر 2 ہے which of the following is an example of quantitative data. تو اس کا کیا ہے، فیوریٹ آئس کریم فلیورز، مطلب کہ سی ہے فیوریٹ آئس کریم فلیورز. اچھا میں آپ کو بتا دوں 4 قسم کی بکس ہمارے پاس ٹیک گروپ کی موجود ہے، کمپیوٹر سائنس ٹیک اینڈ انٹرپرینیورشپ. اس کی صرف ایکسرسائز سولو ہوں گی کیونکہ آپ کا پیپر اس میں سے بننا ہے. اس کے بعد کمیونیکیشن سکلز اینڈ پرسنل گرومنگ کی موجود ہے جس میں آپ کا فل ایگزام پیکج ہے، MCQs، شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن، ایکسٹرا گیسٹ کویشچن، سولوشن آف آل ایکسرسائز، ایگزام فوکس گیسٹ پیپر بھی آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیشن ڈیزائننگ کی ہے. فیشن ڈیزائننگ کی بڑی ہی
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की बुक है, जिसमें आपको मिलता है एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ ऑल एक्सरसाइजेज एंड एग्जाम फोकस गैस पेपर। ठीक है, उसके बाद आईसीटी की बड़ी ही कमाल की बुक है। ठीक है, स्टूडेंट्स की बहुत से अच्छे फीडबैक आए हैं, सब कह रहे हैं बहुत अच्छी, हम फुल मार्क्स लेंगे। तो स्टूडेंट्स के फीडबैक मैंने व्हाट्सएप चैनल में भी शेयर किए। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी से ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट, स्कूल न्यूज़ मिलती रहेंगी। पहले कमेंट में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आईसीटी की बुक है और इसमें भी आपको ये सारा कुछ मिलता है। और एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ आर एक्सरसाइज, एग्जाम फोकस गैस पेपर्स। तो अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर ठीक है आपको व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगा। 0300 व्हाट्सएप पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, 0344 14 36 961। ठीक है, नंबर क्या है, 0344 14 36 961। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, की बुक्स ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो आप चलते हैं एमसीक्यूज, हमारे ये दो तो हो गए थे, ये वाला और ये वाला। नंबर मैं दोबारा से लिख दूं, वो रिमूव हो गया है, 0344 14 36 961 से 344 14 36 961। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ number 3. What type of data involves distinct separate value data countable? तो इसका जो तीसरे का है, आप देख सकते हैं कि what type of data involves, तो इसका C है discrete data। discrete data, तो यहाँ पर आप निशान लगा सकते हैं discrete data। ये वाला आपका सी वाला आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस डाटा। अब जो कंटिन्यूअस डाटा की एग्जांपल है वो बी है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा होगा, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स। व्हाट्सएप चैनल को आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर्स, ये बी है यहाँ पर, तो की बुक में भी बी बताया हुआ है। ठीक है, मतलब सब कुछ करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 5. What type of data is used to categorize atoms without implying any order? इसका पांचवे का जो है वो है what type of data is used to, ये सी नुमेरी नॉमिनल डाटा। ठीक है, क्या है, नॉमिनल डाटा, ये वाला। उसके बाद 6 है, हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज डाटा टू मेक इट इजियर टू एनालाइज। तो इसका जो आंसर है ये छठा है। यहाँ पर भी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 344 14 36 961। आपको फ्री होम डिलीवरी के साथ जो आप एड्रेस देंगे, प्रिंट वाली की बुक होगी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के साथ आपके दिए गए पते पर पहुंचा दी जाएगी 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के जरिए। हाउ कैन यू ऑर्गेनाइज डाटा टू मेक इट इजियर टू एनालाइज, इसका बी है आंसर, बाय क्रिएटिंग टेबल्स, चार्ट एंड ग्राफ्स। ठीक है, इसका क्या है, बाय क्रिएटिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7, विच टूल कैन बी यूज टू क्रिएट सर्वेज ऑनलाइन। तो ये आपको मालूम है कि गूगल फॉर्म्स है। ठीक है, कि नहीं मालूम तो देख लेते हैं कि बुक में, विच टूल्स कैन बी यूज टू क्रिएट सर्वेज ऑनलाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल फॉर्म्स, एक्सेल स्प्रेडशीट्स, एडोब फोटोशॉप। तो गूगल फॉर्म्स इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी इंग्लिश में। ठीक है, तो सेक्शन बी है शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी ये शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वालिटिव एंड क्वांटिव डाटा। तो इसका क्या है, quantitative data describes qualities of characteristics like colors, taste or opinions
while quantitative data involves numbers that can be measured or counted, like height, weight और टेस्ट scores. उसके बाद हमारे पास short question है. Give an example of continuous data and explain why it is considered continuous. तो इसकी एग्जाम्पल देनी है. बिल्कुल इजी एग्जाम्पल है कि height of students in centimeter is an example of continuous data because it can take any value within a range and can be measured not just in fixed steps. उस बिल्कुल इजी इंग्लिश आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा. Which method would you use to collect opinions from a large group of people about a new school policy? तो आंसर है ए सर्वे और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चनियर is the best method because it allows you to collect opinions from many people quickly and efficiently. तो नेक्स्ट है हमारे पास question number 4. What type of data is the number of students in your class? It is quantitative discrete data because it involves quantitative separate distinct values. You can count students one by one. उसके बाद question number 5 है. Why is it important to organize data into tables or chart before analyzing it? Organizing data into tables or charts make it easier to understand. To क्या है Organizing data into tables or chart makes it easier to understand, compare and draw meaningful from the data. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 है. व्हाट इज वन, ये हमने अभी किया है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है. What is the one advantage of using online tools like Google Form for collecting survey data? तो इसका जो है बिल्कुल इजी आंसर हमारे पास मौजूद है. क्या है कि ये तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन. उसके बाद है आंसर. ऑनलाइन टूल्स लाइक गूगल फॉर्म्स मेक डाटा कलेक्शन फास्टर, इजियर एंड मोर एक्यूरेट एंड दे अलो ऑटोमेटिक स्टोरेज एंड एनालाइज रिस्पॉन्स. उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन qualitative and quantitative data, provide examples of each type. ओके हो गया. तो इसका जो आंसर है explain difference qualitative and quantitative data, provide example of each type. आंसर आपका ये और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है डाटा. क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो फिर बड़ा तो होगा, 7 नंबर का है. डाटा is the information collect to study, analyze or make decision in data science. Data is generally divided into qualitative and quantitative types. मतलब कि डाटा इंफॉर्मेशन है. कलेक्ट टू उसके सारी जो कलेक्ट होता है स्टडीज, जो एनालाइज वाला जो होता है सारी मालूमात, उसको डाटा कहते हैं. डाटा इन डाटा साइंस में डाटा जनरली डिवाइडेड. डाटा साइंस में मतलब कि डाटा दो मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम होता है. वो दो मुख्तलिफ अक़साम कौन सी है? क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनमें का जो डिफरेंस है, फर्क है, उसको समझना बहुत जरूरी है. क्यों समझना जरूरी है आइए देखते हैं. इट अफेक्ट्स हाउ वी कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा. ये अफेक्ट असर अंदाज होता है कि हम किस तरह जो है ये डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको तज्जिया करते हैं, इसका एनालाइज करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की. क्वालिटेटिव डाटा की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे. अगर आप बोर्ड में इस तरह लिखेंगे तो आपको 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे. तो सबसे पहले ए है क्वालिटेटिव डाटा, बी होगा क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है. तो डेफिनेशन है सबसे पहले qualitative data is descriptive in nature. It represents qualities or characteristics that cannot be measured with numbers. Inside it focuses on attributes, opinions or categories. Purpose इस तरह हेडिंग के साथ लिखेंगे तो आपको आराम से बगैर पढ़े वो पेपर चेकर आपको फुल मार्क्स दे देगा. It helps us understand why or how
something happens. एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपसे एग्जाम्पल पूछी गई है, provide एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फेवरेट सब्जेक्ट्स मैथ साइंस इंग्लिश है, टाइप्स ऑफ हॉबीज है पेंटिंग रीडिंग स्पोर्ट्स है, उसके बाद ओपिनियन ऑन स्कूल कैंटीन गुड एवरेज पुअर। की पॉइंट ये आपका जब मार्क्स आपके लगते हैं ना, जैसे कि आपके 7 आए तो प्लस लगता है, आपने देखा होगा एक सिंपल ए होता है ये भी फुल मार्क्स होता है, लेकिन एक ए प्लस होता है ये ज्यादा जो है, अगर आपकी छोटी सी गलती भी निकल आती है तो उसको इग्नोर कर देता है ये प्लस। और इसका ये प्लस आपको कैसे मिलता है? इजाफी चीज लिखने से, मतलब कि की पॉइंट जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, क्वांटिव डाटा इज ऑफ्टन कलेक्ट यूजिंग इंटरव्यूज। Key point है quantitative data is often collected using interview survey with open-ended questions और next tab ये B quantitative data definition सबसे लिखेंगे। सबसे पहले quantitative data is numerical, it represent quantities amounts or measurable values that can be counted or measured. Purpose, it helps us analyze patterns, calculate average and create graphs और chart। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 30 25 एंड 28, मार्क्स obtained in test 85 90 और 72, टाइम स्पेंड ऑन होमवर्क 2 hours 3 hours। की पॉइंट है कि क्वांटिटिव डाटा कैन बी कंटिन्यूअस, मतलब कि चलता रहता है, कैन टेक एनी वैल्यू, जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता है, और डिस्क्रीट काउंटेबल होता है। ठीक है, और ये समरी आपके पास है इसकी, मतलब कि मुकम्मल आपके सवाल के जो आपका निचोड़, अगर आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपसे ये एग्जाम्पल ना पूछे, ठीक है, सिर्फ इतना पूछ ले एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटिव एंड क्वांटिटिव डाटा, तो आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं, बस ये टेबल कर ले। जब आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपने यहाँ तक करना है। ठीक है, बाकी इसके साथ आप ये ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ज्यादा प्लस प्लस के ऊपर प्लस पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट ये दूसरा क्वेश्चन है। अब ये आपके टोटल कितने क्वेश्चन है? 6 हैं, तो 6 के 6 का आंसर आपको ये देखें कि इसकी बुक में मौजूद है। ठीक, उसके बाद चैप्टर 8 स्टार्ट हो जाता है, तो ये एक अभी ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, तो ये सारा आपको जो है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा कहाँ पर? की बुक में। की बुक आपको कैसे मिलेगी? तरीकाकार मैंने आपको बताया हुआ है कि इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता आपने करना है। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 344 14 36 961। जैसे ही आप इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, लिखें कि मुझे आईसीटी और कंप्यूटर साइंस टेक या सिर्फ कंप्यूटर साइंस टेक की बुक चाहिए, तरीकाकार बताएं मैं कैसे ऑर्डर करूं, आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा और की बुक आपके घर तक पहुंचा दी गई जाएगी जो भी आप एड्रेस देंगे। ठीक है, इसी तरह ये बाकी कंप्लीट इसके चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक आपने लाजमी से करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। की बुक ऑर्डर करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कौन सा मैंने आपको दिया है? 0344 14 36 961। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं और की बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।